So in the last class we started uniform motion, right? Yes, The sir. problems related to uniform motion, which use three equations. Those three equations are uh, these three equations here. Yeah, the first one is V equals U plus AT. Second one is S equals UT plus half AT square. And the third equation is V square minus U square equals 2AS. So based on this, we can do large number of problems. Given that the acceleration is constant or given that the motion is uniform. Now, after that, I told you, okay, let me just keep it here. After that, I told you all the freely falling bodies are what? Uniformly accelerated. Don't say uniformly accelerating. They are bodies with constant Uniform motion. acceleration. Or I can say they are that motion is uniform motion. Okay, clear? Yes, sir. So we need to prove that first. We need to prove that first. So just let me change the colors here. So we need to prove what? What do we need to prove? Freely falling bodies are in uniform motion. Freely falling bodies are in uniform motion. Okay. So we all know that we all know that according to Newton's second law of motion, F equals to ma. Now this, yesterday I just gave you an intuitive explanation why this is true. When you apply force on a body, the acceleration is what? Proportional to the force applied. Yesterday I told you, right? More the force, more the Yes, acceleration. sir. Less the force, less the acceleration. That's why acceleration is proportional to force. Acceleration of that body for a given force is also inversely proportional to mass. If a body is heavy, acceleration will be less. If a body is lighter, its acceleration will be more for the same amount of force. Agreed? Now if we combine both, we got this. A is proportional to F by m. More the force, more the acceleration, less the force, less the acceleration. Whereas more the mass, less the acceleration, less the mass, more the acceleration. That's why this relationship, right? Now, if you take proportionality constant as 1, then A equals F by m. Then A equals F by m. Now, if acceleration is in meters per second square and mass is in kg, okay, then the unit of force will be what? In kg meters per second square. Can you see that? So what will be the units of this? Mass will be kg. Kg means what? Kilograms. Kilogram. 1,000. So kilo is what? 1000. Gram is gram. So it is 1000 grams is 1 kilogram. And acceleration is meters per second square. Meters per second square. Because in SI system, standard international system, SI unit of mass is kg. SI unit of length is mass. And SI unit of time is seconds. Clear? So what are the units of force then? Kilogram meter per second. Kilogram meter per second square, and that is called as Newton. It is called as Newton. Newton. And whenever you write unit which is based which is named after a scientist, you write that unit in small. You write that unit in starting with small letter. Okay. But whenever you write the short form of that unit, you write capital letter. You are getting my point. Clear? जी See, सर. so unit of force क्या है? न्यूटन है. So न्यूटन आप कैसे लिखते हैं? स्मॉल एन से लिखते हैं, बट शॉर्टकट में जब लिखते हैं उसको कैपिटल एन से लिखते हैं. समझ में आया? Yes, sir. उसका Yes, शॉर्ट sir. फॉर्म जब लिखते हैं कैपिटल में लिखते हैं. ठीक है? सो न्यूटन और न्यूटन इज रिटन लाइक दिस. क्लियर?
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन ऑफ फोर्स है तो 5 न्यूटन ऐसे लिखते हैं आप, 5 न्यूटन ऐसे लिखते हैं, और यू कैन राइट इट एज 5 कैपिटल N। क्लियर? ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ वर्क Yes, पता है sir. किसी को? यूनिट ऑफ वर्क, Sir, Joule. unit of work is joule. It is named after James Joule. Okay, Yes. unit of work or energy is what? Joule। Joule. और शॉर्ट में लिखते हैं उसको कैपिटल J लिखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, Yes, sir. किसी को यूनिट ऑफ प्रेशर पता है? यूनिट ऑफ प्रेशर Sir, Pascal. पास्कल। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। सो पास्कल जब आप लिखते हैं फुल वर्ड में तो आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, बट व्हेन यू राइट व्हेन इट्स शॉर्ट फॉर्म, उसका शॉर्ट फॉर्म है PA, तो आप लिखोगे कैपिटल लेटर से। समझ में आई बात? Okay, this is how we write things. Actually, there is a chapter called Units and Dimensions, which I will, teach after I cover vectors. इसके बाद vectors करेंगे, vectors के बाद units and dimensions करेंगे. Actually, that chapter is the first chapter, but I left it because it is little bit, boring. Not boring, but little bit straightforward. So, no lot of mathematics and all. That's why I left it. So after vectors we'll do that chapter. Clear? Okay. Now Newton's second law क्या बोलता, बोलिए। तो यहाँ पे n कैपिटल क्यों लिखा मैंने? Sir, क्योंकि ये नाम है। क्योंकि ये नाम है और न्यूटन सेकंड लॉ की बात हो रही, यूनिट्स की बात नहीं हो रही फोर्स के। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट डज इट से? इट सेज F equals to MA. ma। Me. Actually, this is not the complete Newton's law, second law. ये only half है। इसका complete version जब न्यूटन्स लॉस पढ़ेंगे, जब मैं बोलूंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी इतना काफी है। रिजिड बॉडीज के लिए यही है, रिजिड बॉडीज के लिए यही है। दिस इज फॉर रिजिड बॉडीज। ओके, F equals to ma। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मेरे को ये बोलिए, इफ F is 0 और ये F क्या होता है? ये F क्या होता है? Force. अगर टेक्निकली करेक्ट बात करें तो ये होता है आपका नेट फोर्स। क्या है ये? Net force. नेट फोर्स, क्योंकि कभी कभी दो फोर्सेस लगेंगे और दोनों इक्वली बैलेंस कर देंगे, जीरो हो जाएगा। ये क्या है आपका? नेट फोर्स। नाउ इफ now you tell me, think and tell, if F is 0 then Acceleration is Acceleration zero. is zero. एक्सेलरेशन इज 0। अगर F 0 है, मतलब नेट फोर्स अगर बॉडी पे 0 है, देन उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. अगर एक्सेलरेशन इज 0, if acceleration is 0, then what can you tell about velocity? Sir, velocity is uniform. यूनिफॉर्म मत बोलो, एक और Sir, मत। Constant. Zero. constant. Constant. If A is Constant. equal to 0, then do you agree? Yes, sir. If A is equal to 0, E is constant। समझ में आई बात? क्यों? Why? Because A equals to Function of dv by dt. dt। ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? Sir, जब v कोई constant term. v कोई कांस्टेंट होगा तो होगा बराबर, जब ये कोई कांस्टेंट होगा तभी 0 होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी 0। समझ में आई बात? तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? कंक्लूजन क्या है? इन द absence of a net external force, the velocity of body, बोलो, doesn't Change. change।
समझ में आई बात? Yes, sir. That is, if the body is at rest, it remains at rest. समझ गए? जी सर। Or it continues. It continues its state of motion. मतलब 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो 5 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, -5 से जा रहा था पहले तो वो -5 से ही जाएगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। क्लियर? Sir, हाँ, so in upper condition, dv by dt, A is sir, here, if v is there means मतलब पूरा कंफर्म है सर कि वो वेलोसिटी होएगी फार तो जीरो भी हो सकती है यहाँ से पॉजिटिव अगर वो रेस्ट पे हो तो हाँ, जीरो भी हो सकती है, जीरो भी एक कांस्टेंट है। so sir we can choose zero also in options if there are two options constant and zero then what we have to do? नो, कांस्टेंट एंड जीरो नहीं रहेगा ऑप्शन में क्योंकि जीरो भी एक कांस्टेंट है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे v क्या हो सकता है? v क्या हो सकता है यहाँ पे? v क्या हो सकता है? v कैन बी -5, -2, 0, 10, 100 कुछ भी हो सकता। समझ में आई बात? Yes sir. मगर v ऐसा नहीं रह सकता, t स्क्वायर, t क्यूब, log t, e⁻t, sin t ऐसा नहीं हो सकता, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात? Yes sir. तो एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या है फर्स्ट लॉ? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते। क्या बोलते हैं? Law of inertia. लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते। दैट मीन्स जो बॉडी पहले जैसे स्टेट में है वही सही स्टेट में रहेगी अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। ये एक्चुअली दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलीलियो एंड इट वाज प्रूव्ड बाय गैलीलियो आल्सो बाय थॉट एक्सपेरिमेंट। we'll discuss that in the chapter of laws of motion, not now. Clear? समझ में आई बात? Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल law of gravitation. Now this law will be studied in the chapter of gravitation, but I am giving you the expression now. So Newton's law of gravitation क्या बोलता? अगर दो मासेस है आपके पास दो मासेस है m1 m2, ये एक m1 है और एक मास है m2। ठीक है, m1 m2 दो मासेस है आपके पास, दोनों सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस है, दोनों सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है दोनों? Hours. कुछ r से। ठीक है, सो दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। ठीक है, देन the force of attraction between these two Is directly proportional to the product of their masses. हाँ, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में है इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो F is proportional to m1 m2 M2 and F is inversely proportional to Distance square of the distance। तो यहाँ पे दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? F is inversely proportional to 1/r square और दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? F is directly F proportional is proportional to m1 m2 by m1 m by r2 r square. अच्छा, ये जो r है ना, r कहाँ से लेंगे? सेंटर्स ऑफ टू पार्टिकल से लेंगे और टू बॉडीज से लेंगे। समझ गए? जी r कहाँ से Yes, sir. लेंगे? फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। समझ गए? तो ये इसके सेंटर से लेंगे, ये इसके सेंटर से लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस। ओके,
तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो होगा कैपिटल जी हियर. इधर क्या होगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट? कैपिटल जी. तो F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर. ठीक है, G की वैल्यू क्या रहेगी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 to the power minus 11. 6.67 into 10 power into 10 to the -11. Minus 11. 6.67 into 10 power minus 11. यूनिट्स अगर देखोगे इसके तो इसका न्यूटन होगा, तो न्यूटन आएगा. हाँ, और ये दोनों केजी स्क्वायर नीचे जाएंगे तो पर केजी स्क्वायर आएगा, मीटर और स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा उधर, तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आएगा. इसका यूनिट जो है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आएगा. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ना देखो न्यूटन का एन बड़ा लिखा मैंने क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिखा, इसलिए एन कैपिटल आई एम यूजिंग. क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर. ओके, नेक्स्ट. अगर अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है. व्हाट इज दिस? ये अर्थ है. नो, अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इधर. सो लेट मी जस्ट चेंज इट लिटिल बिट. तो अर्थ पे जो है ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा है येलो कलर का. समझ गया? यस सर. तो अर्थ पे कुछ ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से निकालना पड़ेगा. सेंटर ऑफ अर्थ से निकालना पड़ेगा. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ. समझ गए? ठीक है. Yes, sir. अच्छा, ये जो अर्थ का मास है उसको कैपिटल एम लेंगे. अर्थ का जो मास है उसको कैपिटल एम लेंगे, और वो जो पार्टिकल है अर्थ के ऊपर कुछ भी हो सकता. ओके, दैट पार्टिकल कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी ए क्रिकेट बॉल, इट कैन बी ए स्टोन, इट कैन बी ए बस, इट कैन बी ए बिग रॉक. ओके, वॉट एवर इट इज. तो उसका मास क्या होगा? स्मॉल एम होगा. समझ में आई बात? ठीक है. यस सर. अच्छा, तो what will be the force of attraction between this mass and earth? बोलिए. According to Newton's law, F is equal to G M1 into M1 M1 M2 by R square. M1 M2 क्या है? कैपिटल एम एंड स्मॉल एम. और डिस्टेंस क्या लोगे? रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ और वो ऑब्जेक्ट तो रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा ऑलमोस्ट. समझ गए? So this is true for small heights. Small heights मतलब क्या? H must be, बोलिए. H must be less than R. Small. अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो ऑब्जेक्ट जो है ना ज्यादा हाइट पे नहीं ले जा सकते आप. समझ में आई बात? यस. फॉर एग्जाम्पल हाइट अगर R पे लेके गए आप, अगर हाइट R पे लेके गए, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इधर है, इतनी दूर है, मतलब इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट पे लेके चले गए आप सरफेस ऑफ अर्थ से. जब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया अभी? 2r हो गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऑब्जेक्ट अगर आपने बहुत बड़ी हाइट पे लेके गए, सी अर्थ का रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर है. समझ में आया बात आपको? अर्थ का रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर. समझ में आए? यस सर. और माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है सी लेवल से? 8.8 किलोमीटर है. समझ में आया? Yes, sir. और अर्थ का रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर है. Now compared to 6400 kilometers, 8.8 is negligible, right? इसका मतलब या Yes, पे sir. रहने दो या माउंट एवरेस्ट पे रहने दो, ऑलमोस्ट सेम रेडियस पे है वो. ठीक है? क्लियर? Yes.
मगर अगर ऑब्जेक्ट को आपने बहुत ही ज्यादा हाइट पे लेके चले गए आप, जैसा कोई सैटेलाइट है, तो वहां पे जो है ना ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। समझ में आई बात? सो ये इक्वेशन वैलिड होने के लिए कंडीशन क्या है? h मस्ट बी, सर हाँ, less than 6400 के नीचे ले किलोमीटर के। रेडियस योर साउंड इज नॉट क्लियर, कैन यू प्लीज टाइप? देखो अगर हाइट जो है ना, हाइट 10 मीटर्स है या इवन 10 किलोमीटर्स है, तो इट्स वैलिड। समझ में आई बात? सर हाँ, सर ऑब्जेक्ट हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ रेडियस नहीं, हाइट हमेशा सरफेस से लेते हैं, ये है हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट ये होती है। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट इधर है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो हाइट होगी ये होगी हाइट। समझ में आई बात? ओके सर। Sir, the vertical one will not be the height; it will be the radius. It will be the distance from the center of earth. Oh, तो okay. ये है हाइट आपका, ठीक है, ये है हाइट। समझ में आई बात आपको? ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ इधर। देखो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो आपकी हाइट होगी ये। Sir, can you just draw it inside the earth only? what? The object and over. ये है आपकी हाइट, ठीक है, ये आपकी हाइट है। समझ में आया? और Yes. इसका ये जो अभी पार्टिकल बाहर ड्रॉ किया मैंने, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा? इट विल बी r plus h। समझ गए? सो लेट अस कॉल दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बी बोलते हैं, येलो कलर में लेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बी बोलो। ओके, लेट अस टेक दिस एज ऑब्जेक्ट बी, लेट अस टेक दिस एज ऑब्जेक्ट ए। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, समझ में आएगा आपको। देखो फॉर ऑब्जेक्ट ए के लिए देखो ए h इक्वल्स टू 0, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा? So radius. r होगा, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, बी के लिए r plus h ठीक है, बी के लिए, बी का लिखो, बी के लिए, अच्छा हाइट h लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाइट h, हाइट है h, और इसके लिए हाइट है 0। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट ए के लिए हाइट है 0, क्लियर? एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा? r प्लस h। समझ में आई बात? सर जब हाइट 0 है तो r plus h कैसे हुआ? तो सॉरी, r है, ये है r प्लस h, ये है r प्लस h, ये r है, ठीक। जस्ट लेट मी राइट डाउन, दिस इज r, दिस इज r प्लस h। नाउ इज इट क्लियर? Yes sir. यस सर। ये जो b ऑब्जेक्ट है ना, दिखाई दे रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट b है, ऑब्जेक्ट b का क्या है? हाइट h है। h कहाँ से देखते हैं? हमेशा सरफेस ऑफ अर्थ से देखते हैं, जिसका दूसरा नाम है एल्टीट्यूड, जिसका दूसरा नाम है एल्टीट्यूड। समझ में आई बात? और ये जो a है, ऑब्जेक्ट a है, उसका हाइट है 0 और उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ कितना है? r। क्लियर? Yes sir. अच्छा, अगर h काफी कम है, लाइक 10 किलोमीटर, 10 मीटर, देन दिस इज वैलिड। मगर इफ h इज लार्ज, इफ h इज लाइक, देखो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर है ना? यस सर। अच्छा, अगर हाइट है 3200 किलोमीटर, या अगर हाइट है
6400 किलोमीटर, और इवन इफ 400 किलोमीटर भी है तो स्टिल अगर 200 किलोमीटर भी है हाइट, then still that height is comparable to radius of earth ना. Yes, sir. These heights are Yes. comparable to radius of earth. समझ गए? Sir, Hmm. sir, in the above sentence you have written height of B is 0. Height of B is 0, sir, in this sentence. अच्छा, A और B उल्टा हो गया. एक मिनट, इधर A लिखो, इधर B लिखो. Okay, sir. Thank you, sir. Height of A is 0 and distance from center of earth is R. Height of B is H and distance from center of earth is R plus H. Now it's clear, right? Yes, sir. अच्छा, तो हाइट्स कितने कैसे होने चाहिए? हाइट मस्ट बी मच लेस देन आर. मच लेस देन आर मतलब क्या? हाइट के वैल्यूज जो है ना, लाइक 10 किलोमीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर रहेगा तो चलेगा, पर हाइट बहुत ज्यादा रहेगी, लाइक 3200 किलोमीटर, लाइक 6400 किलोमीटर, और लाइक 400 किलोमीटर, ओके, और 200 किलोमीटर. देन कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे एफ के लिए? ये यूज करोगे. कौन सा? ये F equals to G M M by Sir, R square. R plus H whole. plus H whole square. Sir, 100 also will be counted. Yeah, even 100 is also comparable ना to 6400. देखो, कोई चीज को नेग्लिजिबल कब लोगे? जब ऐड करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. समझ गए? अब Yes, sir. 6400 में 100 ऐड करोगे तो 6500 होगा. तो ऑब्वियसली 6400 और 6500 में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप. अगर 6400 को 0.01 ऐड करूंगा तो हम नेग्लेक्ट कर सकते, राइट? और 6400 को मैं अगर 10 भी ऐड करूंगा तो 6410 इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6400. समझ में आई बात? Yes, sir. So those things slowly you'll understand, don't worry. Now this formula is valid if this formula must be used if H is Much lesser than. not negligible. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. If H is not negligible, ये formula use करो. If H is negligible, क्या formula use करोगे? G capital F equals to G M by R square. Negligible, then F on any object. MA, sir. F is equal to कितना? बोलिए. G M G M capital M Small by m R square. by by R square. R square. ठीक है. So what is this force? This force is the force applied by Earth on the object and by the object on Earth. ये म्यूचुअल फोर्स है. कौन सा फोर्स है ये? Mutual, sir. म्यूचुअल फोर्स. इसका मतलब जितना फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगाएगा उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगाएगा. वो न्यूटन थर्ड लॉ है, पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है कि एवरी फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स. ये क्या है? म्यूचुअल फोर्स. समझ गए? अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगाएगा इतना फोर्स और ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगाएगा. समझ में आई बात? Yes, sir. Now we are worried about the object. Let us look at the object. So let us think about the object. तो object के लिए the object of mass m, the object of mass small m experiences a force of, बोलो कितना? G M by R square. Force of G M by R square. R square close to the surface of Earth. Close to the
surface of it. ठीक है, क्लियर? Yes, नाउ sir. बट न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता? तो लेट अस जस्ट राइट इट एज F इक्वल्स टू दिस. बट न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता? F equals to ma. न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता? F इक्वल्स ma. समझ में आई बात? Yes, sir. और वो a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल है. समझ गए? ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है. समझ गए? Yes, sir. Now if I combine these two equations, what will I get? F equals to ma. F equals to g mm by r square. If I combine these two equations, what will I get? GMA by R square. No, these two are equal ना. एक न्यूटन सेकंड लॉ है और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. ठीक है? यस सर. तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या आया कंक्लूजन? ma बोलिए. इक्वल्स टू GM by R square. ma इक्वल्स टू g कैपिटल M, ये अर्थ का मास है और ये स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर. अच्छा, कैन यू ऑब्जर्व समथिंग हियर? यस सर. तो mm कट हो जाएगा. mm कट हो जाएगा तो a कितना आएगा? GM by R square. a इक्वल्स टू GM by R square. a इक्वल्स टू g m by r. समझ में बात? Yes, sir. तो एक्चुअली दिस इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट के यहाँ पे क्या प्रूव हो गया? देयरफॉर बोलो क्या कंक्लूजन निकला? द एक्सेलरेशन Of a body at Object. of a freely falling body close to the surface of Earth. Close to the surface. समझ में आई बात? Yes, sir. Of Earth is, क्या बोलूं मैं? वर्ड is in, बोलो is independent of its mass. समझ गए? बात समझ में आ गई? Yes, sir. अगर मैं दो ऑब्जेक्ट लूंगा, एक 1 kg का और एक 5 kg का और एक 5 kg का, एक पर्टिकुलर हाइट से फेंकूंगा, इनको छोड़ दूंगा, तो दोनों जो है ना एक साथ रीच करेंगे ग्राउंड. समझ में आई बात? दोनों एक साथ रीच करेंगे ग्राउंड. क्लियर? Yes, sir. व्हाई? बिकॉज उनका जो एक्सेलरेशन है वो उनके मास पे डिपेंड नहीं करता. समझ में आई बात? Yes, sir. They reach ground together. They fall together. They लेकिन सरफेस एरिया भी तो मैटर करता है. मतलब एक पेपर है जिसको हम बॉल बना के फेंक रहे हैं और एक पेपर है. those things we don't consider here. That is called air drag and all. So we see, if you take a vacuum, अगर वैक्यूम कर दिया आपने एक चेम्बर को, चेम्बर में आपने एक आयरन का बॉल डाला और साथ में एक फेदर डाला, बर्ड का फेदर डाला, तो दोनों एक साथ नीचे आएंगे. अब रियल लाइफ में फेदर नीचे क्यों नहीं आता? क्योंकि एयर रेसिस्टेंस होता है, उसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं. तो दोज आर ऑल रियल कंडीशंस, बट वी स्टडी आइडियल कंडीशंस इन फिजिक्स. आइडियल मतलब क्या? जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, जहाँ पे एयर ड्रैग नहीं होता, ये सारे आइडियल कंडीशंस है. समझ गए? तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ना गैलीलियो ने किया था. दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय गैलीलियो फ्रॉम लीनिंग टावर ऑफ पीसा. करेक्ट?
Yes, sir. Galileo proved this experimentally. So Galileo came before Newton. Everybody might have some idea. You know which country does Galileo belong to? Greece. No, Galileo is from Italy. Okay, Galileo is from Italy. That's why he did the experiment from Leaning Tower of Pisa, right? And everybody knows where Newton comes from. न्यूटन कहाँ से है पता है आप लोगों को? Anybody knows which country does Newton belong to? Sir, England. Newton is from England. He sat in the same chair in which the recently Stephen Hawking used to sit in Cambridge. Okay, he was the head of the Department of Physics in Cambridge. He is from England. Okay, so he is considered as the greatest scientist of all time. Okay, Newton. Sir Isaac Newton is considered as the greatest scientist of all time. And आपको पता होना चाहिए सर जो टाइटल देते हैं वो इंग्लैंड वाले ही देते हैं सर. ठीक है, मतलब वो नाइटहुड है वहां पे. ठीक है, तो एनीवे द ईयर इन विच न्यूटन डाइड in the same year Newton was born. Okay, anyway, there is a lot to learn about them. They are great people. So this experiment was done by Galileo from Leaning Tower of Pisa, that he dropped different objects of different masses, but they were reaching the ground equally. इसका मतलब क्या? उनका acceleration due to gravity same था. समझे? So no matter what the mass is, all objects, बोलो क्या लिखूं? All objects Will fall at the same time. fall with same acceleration. यहाँ देखो, यहाँ सबका acceleration क्या होता है? So here at 9.8 meter per second. इतना समझ में आई बात? ओके, तो सबका एक्सेलरेशन सेम होता है. सेम एक्सेलरेशन a equals to g m by r square. समझ में आई बात? अच्छा, अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया g की वैल्यू, m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 9.8. It turns out that the value of a the value of a is approximately 9.8 meter per second square. Approximately 9.8. Let me write in different color. 9.8 meters per second square. Okay, कौन से डायरेक्शन में? So towards the Vertically downwards. Vertically downwards. ठीक है. अच्छा, इनफैक्ट जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसी को आप जो है ना वर्टिकली डाउन बोलते हो. एक्चुअली इट इज द अदर वे अराउंड. समझ गए बात? yes sir. तो वर्टिकल डायरेक्शन क्या होता है? जो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट गिरते हैं उसी को हम वर्टिकल डायरेक्शन लेते हैं. क्लियर? समझ में आई बात? अच्छा, Yes sir. so in some numerical problems we take g equals to 10 meter per second square downwards. Now see, कब 10 लेंगे और कब 9.8 लेंगे? अगर वो बोलेगा कि 10 लो तो 10 लेंगे, अगर वो बोलेगा 9.8 लो तो 9.8 लेंगे. और कभी कभी नंबर्स को देख के हम डिसाइड करेंगे कि 10 ज्यादा बेहतर है लेना के 9.8 ज्यादा बेहतर है लेना. ठीक है, समझ में आई बात? Yes sir. ओके फाइन. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पे प्रूफ है. क्या प्रूफ है यहाँ पे? व्हाट इज दिस प्रूफ फॉर?
The freely falling objects fall at the same time. Prove that G is independent of mass of its mass. समझ में आई बात? G is independent of Mass of an object. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आप 10 kg का लो या 100 kg का लो या 1000 kg का लो, वो गिरेगा 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से ही। क्लियर? समझ में आई बात? Yes, sir. Okay, so let me just erase this. So let us see how the problems are. Okay, तो न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखो अभी। तो न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूमेरिकल्स में प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस एंड माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको राइट आंसर आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नाउ सी, क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक दिस। सी, देयर इज अ टावर। ठीक है, देयर इज अ टावर। टावर का हाइट दे दिया आपको, वो टावर का हाइट है से 100 मीटर्स। टावर का हाइट कितना है? 100 मीटर्स है। देखो, टावर का हाइट है 100 मीटर्स। तो टावर के ऊपर एक आदमी है जो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लॉन्च करेगा विथ सम स्पीड जो है ना, ऊपर की तरफ एक ऑब्जेक्ट लॉन्च करेगा। तो इनिशियल स्पीड कुछ दी गई है, दैट द इनिशियल स्पीड u be equal to, I'll write it this side, u is equal to 5 meters per second। u क्या है? 5 meters per second है। क्लियर? Yes, sir. u is 5 meters per second। u is 5 meters per second। Now the question is, देखो, after what time will the object reach the ground? ग्राउंड किधर है? ग्राउंड इधर है, दिखाई दे रहा है आपको? This is ground। This is ground। समझ में आई बात? अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया इसने, कितना दे दिया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा रहेगा या क्वेश्चन में दे देगा कि टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। इनिशियल स्पीड क्या है? 5 मीटर्स पर सेकंड है और 100 मीटर से है। तो प्रॉब्लम कैसे करते हैं देखो, अभी गौर से देखो। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमेशा 0 लेना। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमेशा क्या लेंगे? 0। और ओरिजिन लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या लेंगे? ओरिजिन। ये रेफरेंस है। ठीक है, ये 0 लेते हैं, ओरिजिन। ठीक है, सो लेट मी राइट इट एज 0। इसको 0 लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया लिख लो। सबसे पहले क्या क्या दिया वो लिख लो आप। क्या क्या दिया बोलो? u equals to 5 meters per 5 second. meter per second. 5 meter per second। a equals to It equals to 100 meters. a equals to 10 meter per second square. अच्छा, और एक बात, जो भी ऊपर की तरफ है प्लस लो, जो भी नीचे की तरफ है वो माइनस लो। तो a कितना लोगे? Minus -10 meter per second square. -10 meters per second square। वेरी गुड। What else is given? S is given। S क्यों S दिया है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट पता है अपने को। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है बोलो? 100 meters. देखो, यहाँ से जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। What is displacement? Displacement is the distance between initial point and final point। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका। समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंडिंग पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ? नीचे। minus नीचे Downward. नीचे की तरफ है, तो S कितना लोगे? Minus 100. meter. ठीक है। अच्छा, व्हाट इज ही आस्किंग? इज आस्किंग टाइम। इज आस्किंग
टाइम फाइंड करना है। कौन सा इक्वेशन में फिट होगा बोलिए? S equals to UD plus half AD square. समझ में आई बात? Yes sir. अभी दे दो, जितने जितने वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा बोलो? -100 एस क्या लोगे? equals to माइनस, 5. अच्छा 5 तैयार स्नेह रख दे Minus 2D square. अच्छा कर सांद ने तुम्हें इतना सीकीएम साइड आसने थी मतलब क्लियर? Yes sir. ये कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा? खत्म कितना अग्रीड? Yes sir. क्योंकि टू टाइम्स ये टू जाएगा और ये 5 जाएगा, बराबर है कि नहीं? और कुछ कैंसिल करोगे यहाँ पे? Yes sir. 5 ones समझ गए? तो इक्वेशन क्या हो गया आपका? इक्वेशन क्या हो गया? टी स्क्वायर माइनस टी Minus T प्लस equals to 20 minus इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? आई एम ब्रिंगिंग टी स्क्वायर टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस टी जाके माइनस टी हो जाएगा, और ये -20 है, सॉरी क्या है? -20। समझ में आई बात? क्या आ गया? क्या आ गया? Yes sir. क्या आ गया? क्या है ये? quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना आपको? हाउ टू सॉल्व इट? Yes sir. बोलो। 20t square. आइदर यू कैन सॉल्व इट बाय गेस, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। कैसे? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो t कॉमन ले लिया तो Yes, t sir. माइनस 5 प्लस 4 कॉमन ले लिया तो t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा बोलो? T plus 4 equals to 0. T minus 5 we get equals to 0 are the solutions. 4 into t minus 5 equals to 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस दो ऑप्शन है आपके, 4 t equals to 5 और minus t minus 4। t equals to 5 seconds or t equals to minus 4 seconds। अब obviously we are not talking about any point in the past, so answer is this। समझ में आया? Yes sir. So ये पास्ट में है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो ये पास्ट में रहेगा और ये टाइम जो है ना फ्यूचर में आएगा। तो ऑब्वियसली वी नीड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट इन द फ्यूचर, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन इट विल रीच द ग्राउंड इन फ्यूचर। समझ में? तो आंसर क्या है इसका? Sir, haven't passed. 5 seconds. माइनस टाइम मतलब क्या? 0 से पहले ना, 0 आपका इनिशियल टाइम है, -4 मतलब Yes, sir. 4 सेकंड पहले। जी मतलब सर। अगर ये वीडियो को आप अगर ये जो पार्टिकल जा रहा है, अगर ये वीडियो को आप अगर पास्ट में रिवाइंड करोगे तो मैथमेटिकली इधर से स्टार्ट होगा वो। समझ गए? Yes sir. तो 4 सेकंड पहले स्टार्ट होगा, 5 सेकंड के बाद खत्म होगा ये जर्नी। समझ में आई बात आपको? Yes sir. ओके, एनीवे we'll see a lot of things। तो आंसर क्या है इसका? The object will reach the 5 ground seconds. Reach the ground after 5 seconds. reach the ground after 5 seconds 5 seconds. or reach the ground 5 seconds after its projection। बराबर? Yes sir. Yes sir.
अच्छा, अभी तो नंबर्स फेमिलियर हो गए आपको। इनिशियल स्पीड 5 था, एक्सेलरेशन हमेशा -10 लो क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ होता है, और डिस्प्लेसमेंट -100 क्योंकि आखिर में जो है ना वो -100 पे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द, लिख लो, व्हाट विल बी द स्पीड when the object reaches ground. बोलो। V equals to U plus 80. V equals to U plus 80. वेरी गुड। अच्छा, आप इमेजिन कि हमने टी फाइंड नहीं किया, मतलब पहला क्वेश्चन है ही नहीं। समझ गए कि पहला क्वेश्चन क्या था? Yes. फाइंड द टाइम आफ्टर When it reaches the ground. V square minus U square equals to AL. वेरी गुड, रीचेस द ग्राउंड। ओके, आप v इक्वल टू ut इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास अभी टाइम फाइंड किया था हमने, हमारे पास टाइम है, पर क्वेश्चन में तो टाइम दिया नहीं ना। समझ गए? Yes, sir. So I'll just explain what I'm trying to say. क्वेश्चन में u दे दी, फिर से लिख रहा हूँ 5 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर की तरफ लॉन्च किया, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लूंगा। u इक्वल्स टू 5 मीटर्स पर सेकेंड, और क्या दिया? a इक्वल्स टू -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, S equals to 100 meter per second. इक्वल्स टू -100 मीटर्स। Meter. ओके, क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है, राइट? सो ही इज आस्किंग v क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस V square minus U square equals यहाँ पे कौन से इक्वेशन में ये सारे फिट होंगे? इसमें t नहीं है ना? Third equation. square minus V square minus U AL. square. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 as में फिट होंगे। तो सब्स्टिट्यूट करो, v क्या, v तो फाइंड करना है, छोड़ दो, u सब्स्टिट्यूट करो। I square. तो a कितने लोगे? thousand. s कितना लोगे? 100। तो v स्क्वायर कितना आएगा? बोलो क्या आएगा? ये 2000 आएगा, है क्या नहीं? तो v कितना आया? Root of 725. Clear? Can anyone tell me what is approximately root of 2025? So 45. Yes, sir. 45. Yes, 45. 45 आएगा पक्का? Yes, sir. So 45 into 45 is 2000. 2000. तो आ गया आंसर, v इक्वल्स टू 45 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? Yes, sir. Okay, fine. Okay. Now there are some other questions that can be asked here. कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर उसने पूछा कि आफ्टर प्रोजेक्शन, यू नो, आफ्टर प्रोजेक्शन u इक्वल्स टू क्या था? अगर वो बोला कि आफ्टर व्हाट टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन विल द ऑब्जेक्ट रीच द टॉप ऑफ द टावर, विल रीच द टॉप ऑफ द टावर। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. मतलब ऊपर जाके यहाँ कितनी देर में आएगा, तो कैसे करोगे? तो यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा मैं, लेट मी राइट द क्वेश्चन। व्हाट टाइम after the projection
will the object reach the top of the tower? समझ में आई बात? Yes, sir. Or I can say come back, return to Initial position. return to the point of projection. ठीक है, point of projection. तो फिर से लिख लो, क्या क्या दे दिया सब लिख लो. U कितना दिया? 5 meter per second. 5 meter per second. A is always minus 10 meters per second. S कितना लोगे? 0. 0, क्योंकि जब वापिस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. 0. फाइंड क्या करना है? T. Time. फाइंड करना है. तो किस में फिट होगा ये? S equals to U plus half it square. सब्स्टिट्यूट करो. जीरो इक्वल्स टू, बोलिए. 5 into T. 5 minus 5 square. Minus 5 square. So it will be agreed. Yes, sir. Now Yes, sir. if you look at this, I can write it as 5t square minus 5t equals to 0. Yes, अगर sir. आपने 5t कॉमन ले लिया तो ये आएगा, बराबर. Yes, sir. सो अगर Yes, 5t sir. कॉमन ले लिया तो t minus 1 equals to 0 आएगा. Clear? So what is the answer? Yes, sir. Either t equals to 0 or equals to 1. t equals to 1. अब t equals to 0 तो पता ही है हमको, क्योंकि 0 पे तो था, वहीं से स्टार्ट किया था. So this is initial, this is in Final time. future. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जो पॉइंट से प्रोजेक्ट किया उधर ही वापिस आना, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. जो इस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. समझ गए? क्लियर? सर यानी Yes, sir. इसको 1 सेकंड लगेगा यहाँ तक वापस आने में? हाँ, वापस आने के लिए 1 सेकंड लगेगा इसमें. 5 मीटर पर सेकंड से अगर फेंकोगे आप तो वापस आने के लिए 1 सेकंड लगेगा. इनफैक्ट मैं आपको अभी बहुत सारे फॉर्मूले दे दूंगा जिससे आप एक लाइन में जो है ना आंसर ला पाओगे. तो लेट अस सी, लेट अस टॉक अबाउट वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडीज. किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? Vertically projected. What do you mean by vertically projected bodies? Towards the gravitational force. Projected vertically. अगर आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो वो वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी होगा. अगर आपने इंक्लाइन प्रोजेक्ट किया लाइक फ्रॉम कैनन तो वो वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी नहीं होगा, वो इंक्लाइनली प्रोजेक्टेड बॉडी होगा. समझ गए? ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया, दिस इज वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी. अगर बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया तो दैट इज इंक्लाइनली प्रोजेक्टेड बॉडी. अगर बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया Okay, sir.
ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड बॉडी में आएगा, समझ गए? Yes, sir. So just let me just okay, fine. ये क्या है? पहला वाला Vertically project. दूसरा वाला क्या है? इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल्स। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट। ओके, ये वर्टिकली प्रोजेक्टेड है, ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड है, या इंक्लाइनली प्रोजेक्टेड है? समझ गए? Yes, sir. हॉरिजॉन्टली। Sir, sir, बोलो। inclinedly projected bodies में ये फॉर्मूला वर्क करेगा? करेगा, बट उसका Accelerate. मेथड अलग है, वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम लोग। Okay, sir. ये वर्टिकली प्रोजेक्टेड, इंक्लाइनली प्रोजेक्टेड, ये है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड। समझ गए? Yes, sir. ओके, एनीवे ये तीन अलग अलग टाइप के मोशंस है। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टेड और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि वो मोशन इन 1D नहीं होगा, वो मोशन इन 2D होगा, ठीक है? Yes, sir. Okay, anyway, so now जो वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडीज है उनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। जो वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडीज है उनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडीज आर बॉडीज इन 1D। क्यों? एक ही लाइन में ऊपर जाएंगे और एक ही लाइन में नीचे आ जाएंगे, करेक्ट? क्लियर? Yes, sir. सो Yes, sir. look at this problem। ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जिस ग्राउंड से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो बॉडी, वो है ये, ठीक है? तो आपने जो है ना प्रोजेक्ट किया यू से, कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया? ये यू से प्रोजेक्ट किया, ठीक है? यू से प्रोजेक्ट किया। Now there are various questions that can be asked. There are various questions that can be asked. First question है, what is time of ascent? What is time of ascent? What do you mean by time of ascent? Sir, V तक कितना टाइम लगेगा उसका? क्या कितना टाइम कहाँ जाने? हाईएस्ट पॉइंट पे जाने, समझ गए? वो टाइम ऑफ एसेंट है। Yes, yes, sir. तो बेसिकली दिस इज टाइम फॉर When highest point. अपवर्ड जर्नी। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे हमेशा? जी डाउनवर्ड्स, जी downwards। तो अभी ये जो पहला फाइंड करना है उसके लिए मैं पैरामीटर्स लिखूंगा। यू तो यू है, ये दिया हुआ है, ठीक है? और ए कितना लोगे? -10. माइनस जी लोगे ए, बराबर?
Yes, sir. और u तो u ही लोगे क्योंकि u दिया हुआ है एज, और हाईएस्ट पॉइंट पे अपवर्ड जर्नी में v कितना होगा बोलो? सर क्या? v equals to 0. इक्वल्स टू 0 क्योंकि ऊपर जाके रुक जाएगा। फाइंड क्या करना है अपने को? टाइम फाइंड करना है। लेट अस राइट t इक्वल्स टू व्हाट? वी डोंट नो। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? v equals to u plus 80. v इक्वल्स टू u प्लस 80 है क्या नहीं? Yes, sir. So let me just write down v equals to u plus 80। तो क्या आएगा v equals to u plus 80? 0 equals to u माइनस t टाइम a। ये लिखता हूँ मैं, उसका टाइम ऑफ एसेंट है, ठीक है, t है। तो t है कितना आएगा? बोलो। u by g. u by g। t कितना आएगा? u by g। जी। समझ में आई बात? Yes, sir. तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया u by g। अभी टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। सर हाँ, सर हमने v को 0 क्यों लिया? क्योंकि ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रुक के ही वापिस आएगा ना। अपवर्ड जर्नी में नीचे से स्टार्ट करेगा, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा और नीचे आएगा ना। सर तो फिर फाइनल डेस्टिनेशन तो टॉप पॉइंट हुआ। नहीं हुआ ना, सिर्फ असेंड के लिए हुआ वो फाइनल, असेंड के जर्नी में, डिसेंट के जर्नी में नहीं, है क्या नहीं? रुक थोड़ी रह जाएगा, वापिस आएगा ना कोई भी चीज हाईएस्ट पॉइंट पे। ओके सर। Okay, for the ascent it is final point, but for the whole journey it is not. Clear? तो अभी क्या फाइंड करेंगे? अभी टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट क्या लिया था हमने? t है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. टाइम ऑफ डिसेंट क्या लेंगे बोलो? td. td e सबस्क्रिप्ट d। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आएगा? लेट अस सी। तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए u कितना होगा बोलो? u equals to 0. u इक्वल्स टू 0 क्योंकि वहां पे रुका हुआ है स्टार्टिंग में। u इक्वल्स टू Yes. 0। अग्रीड? Yes. क्या लोगे? v। तो v देखो, जो u से स्टार्ट किया ना वो वही वेलोसिटी से वापस जाएगा जमीन पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अग्रीड? Yes, sir. फॉर एग्जांपल 10 से अगर लॉन्च किया मैंने तो वापस 10 से आएगा। अगर 100 से लॉन्च किया तो वापस 100 से आएगा। समझ में आई बात? Sir, gravitation force will not be added on it. वही ग्रेविटेशन पहले उसको स्लो कर देगा फिर फास्ट करेगा। Okay. See, this is ascent. It will stop there and this is descent. समझ में आई बात? ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, ठीक है? क्लियर? तो अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया तो वापस भी 10 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, तो v कितना लोगे बोलो, जल्दी बोलो, v कितना लोगे? v is equal to u. u लोगेगा माइनस u लोगे? Minus u. रीजन? It is coming downwards. इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है? और a कितना लोगे? a Sir, a is equal to plus g. a is always minus g। फिर y
नीचे के सारे माइनस, ऊपर के सारे प्लस। So why did you take u is equal to 0? देखो जब लॉन्च किया था एसेंड के टाइम पे 10 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया था आपने, राइट? 10 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया था, बराबर? तो 10 से फिर 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 5 4 3 2 1 हो जाएगा, इधर क्लियर? 0 हो जाएगा लास्ट में, क्लियर? Okay, sir. तो यू का डायरेक्शन ऊपर था, इसलिए लास्ट टाइम यू पॉजिटिव लिया था। अभी डिसेंट के जर्नी में यू 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 स्पीड है। लास्ट में कितनी आएगी स्पीड? 10 आएगी। और कौन सा डायरेक्शन में आएगी? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, Minus. यस सर। तो इसलिए हो गया माइनस यू। तो जो यू से लॉन्च किया था उसी की नेगेटिव वैल्यू होगी ये, समझ गए? Yes, sir. और जी तो हमेशा नीचे की तरफ है, तो वो तो हमेशा माइनस जी होगा, क्लियर? Yes, sir. क्लियर ना? सर v इक्वल्स टू माइनस यू में अब भी डाउट है, v इक्वल्स टू v होना चाहिए ना? v इक्वल्स टू v होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में ऐसा देगा, क्वेश्चन में क्या देगा? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ 20 मीटर पर सेकंड देगा। क्या दिया उसने? u दिया, समझ गए? तो u से जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया आपने, ऊपर जाएगा, रुक जाएगा और वापस कितने से आएगा? 20 से ही आएगा, राइट? क्लियर? सर वापस 20 से क्यों आएगा? मतलब उसे वापस तो ग्रेविटी आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो वेलोसिटी से जाएगा वही वेलोसिटी से आएगा। ओके ओके सर, समझ गए? जो वेलोसिटी से गया था वही वेलोसिटी से आएगा, ठीक है? मगर जब जा रहा था उसका डायरेक्शन ऊपर था, जब आ रहा था वो डायरेक्शन नीचे है। मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन नीचे है, समझ में आई बात? तो मैग्नीट्यूड u का होगा मगर डायरेक्शन नीचे होगा, इसलिए -20 लेंगे फाइनल वेलोसिटी। समझ में आई बात? सर यहाँ पे जैसे u 0 है तो फिर v भी 0 हो गया, क्योंकि v इक्वल्स टू माइनस यू है। कहाँ पे? सर आपने जो लिखा है u इक्वल्स टू 0, फिर उसके हाँ। बाद लिखा है v इक्वल्स टू माइनस यू, तो फिर v भी 0 हो गया। जो रिटर्न जर्नी है, ये देखो रिटर्न जर्नी, इधर ये रिटर्न जर्नी है ना, ये अपवर्ड जर्नी है, ये असेंट है और ये डिसेंट है, ठीक है? ये असेंट है और ये डिसेंट है, समझ में आई बात? इधर 20 मीटर पर सेकंड था और इधर 0 मीटर पर सेकंड था। असेंट के लिए ये कौन सा है? ये है एसेंट के लिए u कितना लेंगे? 20 मीटर पर सेकंड। v कितना लेंगे? 0। ये क्या है? ये डिसेंट है, ठीक है? -9। ये एसेंट है और ये डिसेंट है। एसेंट के लिए u कितना लेंगे? अच्छा, ये 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, नीचे कितने से आया? 20 20 मीटर पर सेकंड। तो u कितना लोगे? इसको u कितना लोगे? 0 मीटर पर सेकेंड। 0, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है इसका। और v कितना लोगे? -20। 20 मीटर पर सेकेंड। -20 नीचे की तरफ है, देखो बराबर? Yes, sir. मगर 20 है क्या? वो जो u दिया था ना ओरिजिनल, उसका नेगेटिव है, समझ में आया? Yes, sir. तो व्हाट इज u बेसिकली? व्हाट इज v बेसिकली? -u. इट इज -u। Minus u. समझ में आई बात? Yes, sir. Sir, acceleration while in ascent was also negative. And see acceleration हमेशा नेगेटिव,
So whether it is ascent or descent, acceleration will be negative. Because every time it is downward only ना. तो सर अभी पार्टिकल तो नीचे ही आ रहा है सर, तो उसमें ऐड नहीं हो जाएगा एक्सेलरेशन? अरे देखो, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के सारे पॉजिटिव लेंगे, नीचे के सारे नेगेटिव लेंगे. सर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन सिस्टम फॉलो करेंगे हम लोग. वरना क्या हो जाएगा पता है, हर एक सिचुएशन में सोचना पड़ेगा आपको, किधर पॉजिटिव ले किधर नेगेटिव ले. अगर आपने ब्लाइंड रूल फॉलो किया कि ऊपर का सब पॉजिटिव नीचे का सब नेगेटिव, तो हेडेक खत्म हो जाएगा. समझ गए? ओके सर. क्लियर? हाँ सर आप जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दोनों 20 मीटर पर सेकंड है, अपवर्ड्स भी डाउनवर्ड्स भी, इसमें तो टाइम दोनों का इक्वल हो जाएगा. हाँ इक्वल हो जाएगा. ओके सर. इक्वल हो जाएगा, सिमेट्री है ना इसलिए इक्वल हो जाएगा. So always, ये क्या है? Always. Therefore, G is always negative. whether upward journey रहने दो या downward journey रहने दो, G is always negative. समझ में आई बात? जी सर. यस सर. चलो let us continue. T find करना है अभी. क्या find करना है? T. TD. T equals to T D. ये find करना है. ठीक है? ये मेट दो. तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो? V equals to V is equal to U plus V equals to U plus AT ही यूज करेंगे. ये थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं. तो V equals to U plus AT करते हैं. तो बोलो क्या है V equals to U plus AT? minus U equals to 0 plus minus V AT. ये V की जगह डालेंगे minus U. minus U. माइनस U. U की जगह डालेंगे 0 0 माइनस G TD. तो TD क्या आ गया? U by G. U by G आ गया. तो कंक्लूजन क्या है? TD equals to TA. TD equals to TA. TD equals to TA equals to U by G. Agreed? Yes sir. तो एक और टर्म है जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. समझ रहे ये बात? Yes sir. तो बोलो क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? So twice U plus V. वेरी गुड. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2 times T U by G. व्हाट इज TF? टाइम ऑफ फ्लाइट. सर टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है? पूरी फ्लाइट की जो टाइमिंग है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. डिसेंट. क्लियर? जी सर. यस Sir, सर. it is not 2U and 2G. It will be only 2U. तो U by G ना, U by G प्लस U by G कितना होगा? Yes, okay. U times तो U U. by G होगा ना. क्लियर? Yes sir. ओके. नेक्स्ट लेट अस फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड. मैक्सिमम हाइट को कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं. मैक्सिमम हाइट रीच फाइंड करना है अपने को. क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम हाइट रीच. तो मैक्सिमम हाइट रीच फाइंड करने के लिए फिर से जो है ना लिखो. गिवन लिखो. गिवन क्या है?
सर मैक्सिमम velocity of projection is given if velocity of projection is समझ में आई बात? यस सर। तो बोलो क्या करेंगे? लिखो u equals to यू u equals to u u equals to u v equals to maximum height पे क्या Zero. होती है? 0 s equals to h एच a equals to माइनस जी। a equals to minus g always. यस सर। समझ में आई बात? कौन सा इक्वेशन में फिट होंगे ये? b square minus u square equals to as v square minus u square equal to 2as, right? Yes, sir. So v square minus u square equals to 2as. तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? बोलो। v square तो 0 है, सर माइनस 0 square minus u square equals to minus 2h gh H. minus minus 2 into minus g H. into h, बराबर? Yes, sir. yes sir तो थोड़ा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपको। क्या आएगा? माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh 2GH. implies h equals to Minus U square by minus 2G. no माइनस माइनस कैंसिल हो गया। Yes, u sir. square by 2g By 2g 2G. यू स्क्वायर बाय 2g। क्लियर? yes sir तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आ गया आपको। क्या है वो? यू स्क्वायर बाय 2g। मैक्सिमम हाइट इज u square by u square by 2g. That means maximum height is proportional to square of the initial velocity. Clear? yes sir Okay, fine. Maximum height का फॉर्मूला आ गया। कितने क्या क्या फॉर्मूला आ गया आपको? टाइम ऑफ ascent का आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट का आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। और क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया। फ्लाइट। यस सर। 2u divided by और तीसरा फॉर्मूला किसका आ गया? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। ठीक है, 3 फॉर्मूले आ गए। ओके, ठीक है। Next, I'll give you one more situation. This time I am not projecting. This time I am not projecting anybody. This time I am dropping body. Your voice is breaking. आप लोग म्यूट कर दो एक बार। Just you mute your mic. अब क्लियर है? अभी क्लियर है? Yes, sir. yes sir Okay, when you are not speaking, just mute the mic. Okay. Okay, fine. Now what I am doing, I am dropping body from certain height. Okay. So let us drop bodies from certain height, small h. समझ में आई बात? What you are doing? You are dropping bodies from certain height, small h. Clear? So let us draw that. एक टावर है जिसकी हाइट h है। यहाँ से आपने कुछ ड्रॉप कर दिया, तो ये ग्राउंड है आपका। ये क्या है? ये ग्राउंड है। ये हाइट h है।
यहाँ से आपने कुछ ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब क्या? Really falling. नहीं, ड्रॉप मतलब क्या? आपने इनिशियल वेलोसिटी दी क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। 0. इनिशियल वेलोसिटी 0। ड्रॉप मतलब क्या? जीरो इनिशियल वेलोसिटी must be जीरो 0. That is the meaning of word drop. So drop मतलब क्या? Initial velocity 0. Drop implies u equals to 0. समझ में आई बात? जी सर। ओके, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग क्वेश्चंस आंसर करते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन रीचिंग द ग्राउंड? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज velocity v on reaching ground. अच्छा, फिर से जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या दिया। u equals to 0। 0. v फाइंड करना है तो उसको छोड़ दो ऐसे। a equals to -g। माइनस जी और s इज इक्वल टू h S equal to h. s equals to, बोलो बोलो। कैपिटल h हाँ, F equals to 0. s equals to देखो कहाँ जा रहा, वो कहाँ जा रहा? माइनस h माइनस h। Minus h. s equals Minus to h, yes. माइनस h, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये 0 है, तो h जो फाइनल पोजीशन है नीचे है, नीचे के सारे नेगेटिव। समझ में आई बात? नेगेटिव, यस सर। तो माइनस h, तो ये सब दे दिया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? सर v स्क्वायर माइनस h स्क्वायर Minus u square equal to 2s. वेरी गुड। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू as। S. v फाइंड करना है, जस्ट लीव इट एज इट इज। u स्क्वायर तो 0 है, इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो? सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एच है या स्मॉल एच है? कैपिटल एच दिया क्या स्मॉल एच दिया मैंने? अच्छा, स्मॉल एच। स्मॉल एच दिया ना, तो स्मॉल एच ले लो। इट डजंट मैटर, बट बिकॉज आई हैव गिवन स्मॉल एच, तो आप भी स्मॉल एच ले लो। हाँ, तो बोलो, वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। बोलो भाई, Minus u into minus minus h. माइनस इंटू माइनस क्या होगा? plus Plus प्लस। तो आ गया, आंसर आ गया। v square is equals to yes sir v equals to root 2gh 2gh. root under root 2gh. क्लियर? समझ में आई बात? ये यस सर। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टाइम? व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड आफ्टर ड्रॉपिंग? तो फिर से लिखो, u इक्वल्स टू, बोलो भाई। 0 अच्छा, 0. t फाइंड करना है, तो t इक्वल्स टू, जस्ट लीव इट। ओके, व्हाट एल्स? a इक्वल्स टू माइनस g और s इक्वल्स टू माइनस h। क्लियर? कौन सा इक्वेशन फिट होगा अभी? S equal to ut plus half at square. ut plus half at square। s equals to ut plus half at square, correct? जी सर। Yes. So just write that equation, s equals to ut plus half at square। तो क्या होगा वो? s की जगह क्या डालोगे? Minus h equal to माइनस h इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये 0 तो 0 हो गया, प्लस हाफ minus t square. So if you rearrange that, you will get the answer. What is the answer? देखो, ठीक है, मैं एक और स्टेप लिखूंगा। I'll write one more step. तो h equals to माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा Cancel. t by 2 t square, बराबर? T square. Yes. So this is the next step.
उसके बाद एक और स्टेप आएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h by g। तो लास्ट में क्या आ गया आपका? रूट ऑफ 2h by g। रूट ऑफ 2h T is equal to root of 2h 2h by g। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो ये भी आ गया। सो विल कंटिन्यू टुमारो, विल डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशंस। ठीक है? Sir, the test will contain till here or tomorrow's portion also? Yeah, we'll have tomorrow's portion also, we'll have day after tomorrow's portion also. Okay, sir. Don't worry, it will be easy only. Okay. You just listen to the classes where you'll be able to do the problems in exam. Clear? Okay, sir. Yes sir। Did you start doing those assignments? Yes, sir. Are you getting the answers easily? Okay, you start doing that, you follow the notes properly, you start doing that assignment. Okay, tomorrow we'll have an extra class at 11:30. Clear? Yes, sir. Yes, Okay, sir. everybody comfortable to attend, right, tomorrow? Yes, Yes sir. Okay. And one more thing, for recorded lectures from Monday, I will make a separate folder for your lectures in Google Drive. If you give your Gmails, I can give access to the lectures from there. Clear? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Sir, that Mega Link is not working, sir. It is Yeah, I know. That's why I'll give from I'll give using this Google Drive. You can go in the Google Drive and download and watch. Okay, sir. Thank you. Okay? Yes, sir. सर मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ, मंडे को मैं अपडेट कर दूंगा, नया लिंक दूंगा, क्योंकि ऑल द लेक्चर्स आर बीइंग हेल्ड